Hello, good morning children. How are you? As we were discussing the chapter Weathering the Storm in Arasama, what we have discussed the story of a boy, Prashant, got it? Understand? Who was 18 kilometers far from his house, living with his friend, and suddenly a great storm appeared and everything was destroyed. We have discussed here, and Prashant and his friend's family have to spend their night, or we can say day, on the roof. Maybe they remain there for 2 days. For 2 days they remained on the roof. And how they survived there? They used to eat coconut. Got it? एक पेड़ आकर गिर गया कोकोनट का, उसमें वहाँ पे उन्होंने कोकोनट खाया. After 2 days, when water decreased, जब थोड़ा पानी कम हुआ, Prashant decided to go to his home, and he made his journey with a stick because he was trying to find out the way, because everywhere there was a water and a lot of uprooted tree was also there, and corpse of the men and we can say human being, we can say, and the animals were floating there. Human beings और animals की dead bodies वहाँ पे float कर रही थी, वहाँ पे तैर रही थी पानी में. Everywhere there was a crops, dead bodies थी, लाशें थी, and you can see also trees there, and only you can see the structure of the cemented house, जो कि ढांचा बना हुआ था. केवल कुछ few house were left that was standing but not completely standing. And he also met two friends of his uncle on his way, and he had reached his village. Got it? अपने गांव पहुंचा, and he found that कहाँ उसका घर हुआ करता था, nothing was there. उसकी जो belongingness है वो पेड़ों पे या कहीं पे लटकी हुई थी. Then he thought that everything has we can say destroyed. लेकिन जब वो when he had gone to the shelter, जब वो shelter में गया, then he came to know that all the family members are alive, and he decided to do something for them. And what he decided, I will tell you. Prashant, all of 19 years, decided to step in a leader of his village. He was a 19 years old boy, and he decided to lead the village. He wanted to be the leader. In which way? In which direction? I will tell you. If no one else did, he organized a group of youth and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. क्या किया उसने? He organized a group of merchant, or we can say young people, and एक ग्रुप बनाया और मर्चेंट को मनाया, जो व्यापारी थे उनको मनाया गया, उनको प्रेशर किया गया. क्या करने के लिए? टू पार्ट विद दिस हिज राइस, जो उनका चावल है, उनका जो खाना है वो हम लोगों को दे, जो आश्रय लेने वाले लोग हैं, शेल्टर लेने वाले लोग हैं, उनको दे. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रिम्फेंटली. उसके बाद में वो सक्सेस हुए और विजेता की तरह लौटे. वो मर्चेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाया या रिक्वेस्ट की, ये उन पे डिपेंड था, लेकिन उन्होंने उनसे अनाज ले लिया. वेडिंग थ्रू द रिसेंडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, और उन्होंने सक्सेस मिल गया पूरे शेल्टर के लिए फूड प्राप्त करने के लिए. नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, एंड यू नो राइस वॉज नॉट इन गुड क्वालिटी, दैट वॉज रोटन, सड़ चुका था. बट नो वन केयर अबाउट दैट, nobody was cared about that. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire. और क्या किया? पेड़ गिर गए थे, उनकी ब्रांचेज इकट्ठी की गई और वहां से उनको फायर दी गई, आग जला गई. ठीक है. On which to cook the rice, और उनके ऊपर राइस पकाया गया. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. In 4 days, for the first time, पहली बार 4 दिन में उन्होंने अपना पेट भरा, सर्वाइवर्स ने, जो बचे हुए थे वो लोग. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating cases. And what was the next task of Prashant? उसने एक टीम और बनाई यूथ की.
जो कि उस आश्रय जो है ना, शेल्टर है, उसको साफ रखे, वॉमिटिंग साफ करे, यूरिन साफ करे, बॉडीज, डेड बॉडीज है उनको साफ करे, ताकि वो अच्छा लगे, ताकि लोग रह सके। एंड फ्रैक्चर ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, और लोगों के घाव साफ करे, जो फ्रैक्चर्ड हो गए हैं उनकी देखभाल करे। एक प्रकार की ऐसी एक उसने टीम बनाई। पहली टीम बनाई उसने खाना प्राप्त करने के लिए, मर्चेंट्स को प्रेशराइज किया गया, उनसे रिक्वेस्ट की गई, फॉर राइस आया उनके लिए, खाना खाया उन्होंने। सेकंड क्या बनाया, उन्होंने एक ग्रुप और बनाया ताकि वो साफ सफाई कर सकें, ठीक है। ओनली द फिफ्थ डे a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels, and when it was the fifth day, a military helicopter came there, and what did it do? Dropped some food parcels. उस हेलीकॉप्टर से some food parcels गिरे। It then did not return. After that the helicopter did not return, यानी only one day it returned. The youth task force gathered empty utensil from the shelter. What did they do? The youth, they try to gather, इकट्ठा करने लग गए, the empty utensil, बर्तन जो होते हैं ना वो इकट्ठा करने लग गए वो, to the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter. फिर उन्होंने बच्चों को तैयार किया, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने कहा कि जमीन पे लेट जाओ, टू लाई ऑन द सैंड दैट वाज लेफ्ट बाय वाटर, जो पानी के द्वारा जमीन छोड़ी गई थी उस जमीन पे लेट जाओ। एंड शेल्टर विद दीज यूटेंसिल, और ये यूटेंसिल अपने पास रख लो, अपने पेट पे रख लो बर्तन। ऑन देयर स्टोमक, अपने पेट के ऊपर रख लो, लेट जाओ पेट पे रख लो। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हैंग्री, ताकि तुम लोग, पासिंग हेलीकॉप्टर्स जो पास कर रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, क्योंकि ओनली वन डे दे केम, सो दैट दे केम टू नो दैट यू आर हंग्री। तुम ऐसे लेटोगे तो उनको पता चलेगा कि आप भूखे हो। गॉट इट? दे वर हैंग्री, यानी उन्होंने बच्चों को ड्यूटी दी गई कि तुम ऐसा करो, एक समुद्र के किनारे जो जमीन छोड़ी गई है पानी के द्वारा, उस पर लेट जाओ, ऊपर अपने बर्तन रख लो पेट पे, ताकि हेलीकॉप्टर्स जो पास कर रहे हैं उनको पता चल जाए, दे कैम टू नो दैट दे आर हैंग्री एंड दे वुड ड्रॉप द पार्सल ऑफ फूड्स। द मैसेज गोट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ शेल्टर। द मैसेज was given by the children to the helicopter, and they got this message, and after that they were making a regular round of shelter and dropping food and other basic needs. They were also dropping food, we can say, and other necessary things. Prashant found that a large number of children had been orphaned. Prashant came to know that large number of children had been orphaned. बहुत से बच्चे अनाथ हो गए, जिसके किसी के फादर मर गए, मदर मर गई, तो बच्चों के वो बेचारे अनाथ हो गए। He thought that he brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. उसने सभी को इकट्ठा किया और उनके लिए पॉलीथीन सीट का एक शेल्टर बनाया। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, और लेडीज जो थी उनको ड्यूटी दी गई उन बच्चों की देखभाल करें। कौन से बच्चे? अनाथ बच्चे, उनकी देखभाल कौन करे? वुमेन। व्हाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और मैन को क्या ड्यूटी दी गई? वो फूड और मटेरियल्स लेके आए शेल्टर के लिए। और वुमेन को क्या ड्यूटी दी गई? वुमेन वर गिवन द ड्यूटी टू लुक आफ्टर द orphan children, and the men were given the duty to bring the materials and food supplies. Got it? That was the work which was done by Prashant and his team. As the week passed, Prashant was quick to recognize that the women and the children were sinking deeper and deeper in their grief. Lot of weeks passed. Prashant came to know one thing, that women and the children are in their grief. वो इस दुख से उभरे नहीं हैं, वो उनका दुख गहरा होता जा रहा है, वो और दुखी होते जा रहे हैं, वो परेशान होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया
जो इंसान देखना नहीं चाहता है। दे वर शॉक्ड, टोटली ऑल द चिल्ड्रेन एंड द वुमेन वर शॉक्ड। सो व्हाट डिड ही डिसाइड? He persuaded the women to start working in the food for work program started by NGO। उसने लेडीज लोगों को तैयार किया कि जो एनजीओ के द्वारा फूड वर्क प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें वो कंट्रीब्यूशन करें। यानी वो अकेले बैठी हुई थी, वो दुख में सोच रही थी, उनको बहुत दुख हो रहा था, तो प्रशांत ने उनको क्या किया, बिजी किया। एंड फॉर द चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए, ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स। उसने स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया बच्चों के लिए। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट। द बॉय हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, हु? प्रशांत। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रेन। तो बच्चों के लिए उसने क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किए। यानी लेडीज लोग और बच्चे सबसे ज़्यादा दुखी थे, वो उनके पास कुछ था नहीं, तो उसने क्या किया, उनको बिजी कर दिया। और जब बंदा बिजी हो जाता है तो अपने दुख दर्द भूल जाता है। वेर ए पर्सन गॉन बिजी, ही वुड फॉरगेट ऑल हिज सोरोज। सो व्हाट डिड प्रशांत डू? ही इन्वॉल्व ऑल द पीपल इन द वर्क, लाइक वुमेन वर गिवन द ड्यूटी बाय द NGO। They were working to prepare in the preparation of the food and anything else. And he also organized some matches for the children so that they can also involve in these match. प्रशांत engaged with other volunteers, और प्रशांत खुद other volunteers के साथ engage हो गया in helping the widows and children to pick up the broken piece of their lives। क्या कर रहा था वो विधवा औरतें और चिल्ड्रेन को हेल्प कर रहा था क्या करने में? विद मेक अ पीस ऑफ ब्रोकन पीस। जो अपनी जिंदगी जो टूट गई थी, उनकी जो लाइफ तहस नहस हो गई थी, उनको दोबारा बुनने में। हु वाज हेल्पिंग, हु वाज इन्वॉल्व इन दिस वर्क? प्रशांत। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। और गवर्नमेंट ने भी कुछ प्लान किए। क्या किए? The government made a plan to set up institutions, इंस्टीट्यूट बना दिए उन्होंने for orphans and widows। विडोज और ऑर्फन बच्चों के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस बना दिए, कुछ ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, गवर्नमेंट ने। तो क्या हुआ? However, this step was successfully resisted। लेकिन इस स्टेप का विरोध किया गया। गवर्नमेंट ने बच्चों और विधवाओं के लिए कुछ आश्रय है ना वो बना दी, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया, प्रशांत और उसके दोस्तों ने। क्यों? एज इट वॉज फेल्ड दैट इन सच ए इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रेन वुड ग्रो अप विदाउट लव एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। उसने कहा कि ऐसा इंस्टीट्यूशन में जो बच्चों के लिए अलग है, विडोज के लिए अलग है, उसमें बच्चों को प्यार, प्रेम, आत्मविश्वास ये नहीं मिलेगा, क्योंकि वो विदाउट लव बड़े होंगे, उनको पता नहीं होगा कि क्या माँ होती, क्या बाप होता है ना। तो इसलिए उसका विरोध किया गया। और जो लेडीज लोग हैं वो क्या होंगी? एंड विडोज सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, अकेलेपन से वो परेशान रहेंगी। यानी न तो विडोज को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन मिल सकेगी, न बच्चों का प्रिपरेशन हो सकेगा, यानी वो पल नहीं सकेंगे अच्छे से, क्यों? बच्चे हैं, उनको पता नहीं होगा, उनको लव, अफेक्शन, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। विडोज को लोनलीनेस, अकेलापन खाएगा। तो क्या किया उन्होंने? प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत के ग्रुप ने एक बिलीव किया, एक प्रोग्राम बनाया कि ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको उन्हीं की कम्युनिटी में सेटल किया जाए। Yes or no? They would resettle in their own community, possibly in new foster family made of childless widows and children without adult care। कुछ नई फैमिलीज बनाई गई, जिन विडोज के बच्चे नहीं थे उनको बच्चे गोद दे दिए गए। ओके, यानी विधवा औरत है, इसके हस्बैंड खत्म हो गए, वो विधवा के बच्चे नहीं है, तो उनको वो बच्चे दे दिए गए गोद, ताकि वो माँ और बेटे का एक प्रकार से रिलेशन हो सके और अपनी ज़िंदगी सुचारू रूप से चला सकें। दैट वाज अ वेरी नाइस स्टेप टेकन बाय द यूथ, कि बच्चे को प्यार मिलेगा माँ का,
वो सब कुछ अच्छी चीज सीखेगा और माँ को बच्चे का प्यार मिलेगा, यानी दोनों का अकेलापन दूर हो जाएगा and they can growth in their life. That was a very nice step taken by Prashant and his friends. It is 6 months after the devastation of super cyclone. उस सुपर साइक्लोन के नरसंहार से विध्वंसता के 6 months बाद, this time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. प्रशांत का खुद का भी दुख था, खुद का भी दर्द था, खुद का घर डूब गया, खुद की आर्थिक स्थिति टूट गई, बेचारा मतलब एकदम से पीछे चला गया लाइफ में अपने में, लेकिन वो सब भूल गया। he forgot all the things which were personally related to him because he had done a great job for others. दूसरों के लिए उसने जो किया ना, उसके चक्कर में वो अपना खुद का दुख दर्द भूल गया। That was the, we can say, inspiration which we can take. His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. उसका जो सुंदर सा चेहरा और भी खिल उठा कब, जब विडोज और ऑर्फन बच्चे अच्छे से पलने लग गए and they were going to be, we can say, very nice. They were going to be live their life very peacefully and nicely. That is why his, we can say, face was also lightening. Whose face was lightening? Prashant. So my dear children, that was the chapter which we have completed today, and this book was also completed. Is that clear? One topic of grammar I have explained you and this book, and now I will teach you one more lesson in that beehive, and after that I will also complete the one चैप्टर ऑफ, वी कैन से टॉपिक ऑफ ग्रामर। उसमें से एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद में एक ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। सो यू हैव टोटली अंडरस्टूड दैट चैप्टर कि एक 19-year-old बॉय प्रशांत, हाउ ही डेवलप्ड द टैटर्ड विलेज, हाउ ही गॉट स्किल्स, हाउ ही वाज स्किल्ड, ही मेड द टीम ऑफ यूथ, किस प्रकार से उसने विध्वंसता देखी, हाउ ही एक्सपीरियंस दिस, वी कैन से ट्रेजेडी, एंड हाउ ही चेंज दिस ट्रेजेडी इनटू अ हैप्पीनेस बिकॉज द बॉय हैड ऑर्गेनाइज्ड ए टीम ऑफ यूथ. इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड? एंड व्हाट हैपेंस? ही ऑर्गेनाइज्ड ए टीम ऑफ यूथ, गॉट इट? एंड व्हाट डिड ही डू? ही एट फर्स्ट उसने लेडीज लोगों की हालत सुधारी, उसने शेल्टर वगैरह, पहले सबसे पहले मर्चेंट्स के ऊपर प्रेशर डाला कि खाना दिया जाए, क्योंकि पैसे वाले होते हैं, उनके पास बहुत स्टोर होता है। फिर उनको खाना देने के बाद में उसने उसकी साफ सफाई करवाई। फिर लेडीज को अलग काम दिया गया, जेंट्स को अलग दिया गया। लेडीज को हाउस रिलेटेड टू हाउस, जेंट्स विल गोइंग टू, वी कैन से, ब्रिंग फूड्स एंड मटेरियल्स, एंड आफ्टर दैट ही थॉट दैट दे आर इन द डीप ग्रीफ, द वुमेन एंड द चिल्ड्रेन। तभी उसने वुमेन को एनजीओ में लगाया, सो दैट दे कैन पास देयर टाइम, एंड चिल्ड्रेन को उसने स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया, गेम्स में लाया बच्चों को, और इस तरीके से उसने उनको। और सबसे अच्छा स्टेप क्या किया, तो गवर्नमेंट ने किया था कि ऑर्फन के लिए अलग और विधवाओं के लिए अलग बनाया था। प्रशांत और उसके दोस्तों ने, उसकी जो टीम ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, उनको उन्हीं की कम्युनिटी में जीने दो, और जो चाइल्डलेस मदर थी उसको बच्चा दिया गया गोद, जिससे वो माँ और बेटे का रिलेशन हो गया, और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। सो दैट वाज द ग्रेट वर्क विच वाज डन बाय द प्रशांत. Is it clear? Now, what havoc the super cyclone wreaked in the life of people of Odisha? super cyclone ने क्या जो मतलब सब कुछ नष्ट कर दिया, तहस नष्ट कर दिया उड़ीसा में। ये पूरा लिखना तुम लोगों को कि साइक्लोन आया, uprooted tree everywhere, you can see the uprooted tree and the dead bodies of human being and the animals were floating in the water, and everywhere the water was till the neck, गर्दन तक वाटर था, and the super cyclone also destroyed all the houses, you know, and the people were also on the roof to save their lives. That is the answer of the first question. Next, how has Prashant, a teenager, been able to help the people of his village? Prashant had made a team of youth and he pressurized the merchants to give them rice for the people, shelter,
and he also motivated the women to do the household work, and he also made the men to bring the food, and also made the team of the children. ये सब लिखना है इसके अंदर. Got it? किस तरीके से उसने चेंज कर दिया. How have the people of the community helped one another? एक दूसरे की हेल्प कैसे की उन्होंने. एक तो वो ऑर्फन वाला सिस्टम किया, जो अनाथ बच्चे थे उनको माँ दे दी गई, और जो बिना बच्चों की माएँ थी, विधवाएं थी, उनको बच्चे दे दिए गए. और एक दूसरे की हेल्प कैसे की, उन्होंने गेम्स वगैरह खेले, एक दूसरे को मोटिवेट किया, हंसाया, और यूरिन वगैरह साफ किए. और मेंस को ये ड्यूटी, ये दोनों क्वेश्चन सेम है. What do you, Prashant and other volunteers resist the plan to set up institution for the orphans and widows? What alternative do they consider? प्रशांत और उसके दोस्तों ने जो गवर्नमेंट ने जो प्लान किया था, इसका उन्होंने क्यों विरोध किया? क्योंकि they knew that if government would make like that, the children would not make any progress in their life, because the children would grow without love, without affection, without proper care. They would grow. वो पता नहीं चलेगा उनको प्यार होता क्या है, क्योंकि माँ से ज़्यादा प्यार कोई नहीं दे सकता, परिवार से ज़्यादा प्यार कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सोसाइटी हमें सब कुछ सिखाती है, और हम सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलेंगे तो we will not learn all the things. That is why they, we can say, were against this. And women, they would not live their life peacefully, and they will feel also lonely. That is why they have protested this government program. And उसके लिए उन्होंने क्या इनिशिएटिव निकाला कि the children would live their life in their own community. Is it clear? Understand? So I will not give any question as a homework to you. I have explained you all the 4 questions. If you are having any doubt and we can say any problem, you can ask me. अगर तुम लोगों ने वीडियो देखा है तो ही तुम आंसर करोगे, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे वीडियो नहीं देखते वो सोचते हैं कि होमवर्क आ जाएगा वो कर लेंगे. That is why I am not going to give you homework. Okay? That is why. Got it? And if you are unable to find out the answer, I will give you the answer. Till then, okay, bye.